ملتان شہر میں دن دہاڑے چلتی ٹریکٹر ٹرالیاں شہریوں کے لیے سنگین خطرہ۔ ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیورز نے دن کے اوقات میں شہری حدود میں داخلے پر پابندی ہوا میں اڑا دی۔ روہی کی نشاندہی پر ٹریفک پولیس بھی ان ایکشن۔ وارننگز اور جرمانوں کے باوجود خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مسلسل حادثات نے عوام کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ شکیل سلطان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان کی مصروف شاہراہوں پر دن کے وقت ٹریکٹر ٹرالوں کی آمد و رفت شہریوں کے لیے مستقل خطرہ بن گئی ہے۔ اینٹوں، ریت، بجری اور بھوسے سے اوور لوڈڈ ٹرالیاں نہ صرف ٹریفک نظام کو مفلوج کر رہی ہیں بلکہ ان سے قیمتی انسانی جانوں کو بھی سنگین خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر ٹرالیوں پر نہ تو مناسب اشاروں کا انتظام ہوتا ہے، نہ ریفلیکٹرز لگے ہوتے ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اکثر ٹریکٹرز کی ہیڈ لائٹس بھی نہیں ہوتی، نہ ہی ڈرائیورز مناسب تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ مناسب حفاظتی نظام نہ ہونے کے باعث حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ہٹا کے تھک پے ہیں، انہیں پیچھے ہٹے ساری بجری کھنڈائی کریں تو بڑے نے لکڑ پھٹے دے بیچ مارے نے میرے، اور پریشانی کھڑے ہیں جو چپ کر کے کیا کروں، بکے پہ لڑوں۔ دوسری طرف روہی نیوز نے جب ٹریفک پولیس حکام کے سامنے ایشو اٹھایا تو ان کا کہنا تھا کہ شہری حدود میں صبح 7 سے رات 11 بجے تک ٹریکٹر ٹرالیوں کا داخلہ ممنوع ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو وارننگ، 10,000 سے 15,000 روپے جرمانہ اور مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ ان کا ٹائم جو ہے نا صبح 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک یہ شہر کی حدود میں نہیں آ سکتے، رات 11 بجے کے بعد صبح 7 بجے تک یہ شہر کی حدود میں آ سکتے ہیں۔ یہ اپنا جو بھی ان کا ہے، یہ مٹی کا، ریت کا، اینٹوں کا جو بھی سلسلہ ہے اس کو جو کیری کر سکتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق بروقت سخت اقدامات نہ کیے گئے تو شہر میں آئے روز حادثات میں انسانی جانوں کا ضیاع معمول بن جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر احمد خان کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں گرین بس سروس کا آغاز شہری خوشی سے نہال۔ سر صادق محمد خان عباسی اسپتال کو شہر سے پبلک ٹرانسپورٹ لنک ملنے کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا۔ ایم ایس اسپتال اور عملے نے مرکزی گیٹ پر بس کا استقبال کیا۔ تفصیلات طاہر جودھیانہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بہاولپور میں گرین بس سروس کا آغاز، نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال تک آسان رسائی کا نیا باب۔ پنجاب حکومت کی طرف سے متعارف ماحول دوست گرین بس سروس اب نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال تک براہ راست پہنچے گی۔ گرین بس سروس چلنے سے اسپتال تک رسائی کا درینہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ایم ایس نے روٹ فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے درینہ اور سب سے پرانا مطالبہ تھا کہ ہاسپٹل کو فنکشنل کرنے کے لیے یا اس کی یہ پیشنٹس کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بس کا ضرور، لیکن سپیڈو آنے کی، ہم نے سپیڈو کا بھی بنا تھا اس روٹ اور اس کے لیے سٹاپ بھی بنا تھا، لیکن وہ شروع نہ ہو سکی تھی۔ لیکن ہمارا یہ بڑا پرانا مطالبہ تھا، ہم اس میں اپنے تمام لوکل گورنمنٹ کو، ڈی سی صاحب کو، کمشنر صاحبہ کو اور ساتھ ساتھ مریم نواز ہماری چیف منسٹر جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال شہر سے 12 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، جس کی وجہ سے مریضوں، لواحقین اور عام شہریوں کو ہسپتال پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہسپتال انتظامیہ نے بھی متعدد بار اس مطالبے کو اٹھایا تھا کہ شہر سے پبلک ٹرانسپورٹ کا براہ راست لنک قائم کیا جائے۔ ایم ایس کا کہنا تھا کہ اب گرین بس سروس کے ذریعے یہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے اسپتال تک 4 بسیں باقاعدگی سے چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ دیکھیے بہت سارے بیچارے رکشہ اب نہیں کر سکتے تھے افورڈ کہ وہ آتے، اور شہر سے 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ، اور ہمارے پاس ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جس میں میڈیسن بھی موجود ہوں، تو اب الحمدللہ ہمارے پاس لوگ آنا شروع بھی ہوں گے زیادہ تعداد میں بنسبت پہلے کے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حامد خان اور عملے نے ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر بس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کیمرامین شاہ ثقلین حیدر کے ساتھ طاہر جودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے بارے حکومت پنجاب کا اہم فیصلہ۔ پنجاب حکومت چائلڈ لیبر کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کرے گی۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے والدین کی مالی معاونت کی جائے گی۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ٹاسک کمیٹیاں بھی قائم، جامع پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے بارے حکومت پنجاب کا اہم فیصلہ۔ پنجاب حکومت چائلڈ لیبر کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کرے گی۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے والدین کی مالی معاونت کی جائے گی۔ بچوں کو مزدوری سے نکالنے پر والدین کو مشروط کیش سپورٹ دینے کا فیصلہ۔ والدین کی مالی معاونت کے بعد بچوں کو تعلیم اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ٹاسک کمیٹیاں قائم، جامع پلان تیار کیا جائے گا۔ چائلڈ لیبر کے موجودہ قانون میں ترامیم کے لیے سفارشات طلب کر لی گئی۔ کمیٹیوں کو چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے 20 سے زائد ٹاسک سونپ دیے گئے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ہیلپ لائن اور بحالی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت سوشیو اکانومک سروے کے تحت والدین کو ماہانہ وظیفہ دے گی۔ اقدامات سے ہزاروں بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔
भावलपुर में आटे की बहरानी सूरत हाल बरकरार, शहरियों ने सरकारी आटे को क्वालिटी पर सवालात खड़े कर दिए। महकमा फूड और फ्लोर मिल्स पर नाकिस आटा फराहम करने के इल्जाम। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सस्ते आटे की सूरत में चोकर नुमा आटा फरोख्त कर रही है। ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में आटा बहरान पर काबू न पाया जा सका। आटे के नरखों में भी इजाफा जारी। 15 किलो का थैला बढ़कर दोबारा 1950 रुपए का हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फी किलो आटे के नर्ख 150 रुपए तक पहुंच गए। बहरानी सूरत हाल में शहरियों ने सरकारी आटे की क्वालिटी पर सवालात खड़े कर दिए। महकमे फूड और फ्लोर मिलों पर नाकिस आटा फराहम करने के इल्जामात लगा दिए। शहरियों का कहना था कि फ्लोर मिलें सरकारी कोटा का आटा दानिस्ता तौर पर नाकिस बनाकर अपना आटा महंगा फरोख्त करने की कोशिश कर रही हैं। खरीदा हुआ सरकारी आटा जानवरों को डाल दिया है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। 160 रुपए किलो आटा खीता है। बच्चे रात 8 बच्चे ने बच्चा नी भूख नहीं लगती है। बच्चे केड़े पासे जाऊं, गरीब है, गुरबत है पई। आटा खराब है, बीमार हो रहे हैं इस चीज से। प्राइवेट आटा नहीं दे रही है, ये लोकल आटा है, ये डंगरों को डालने वाला है। बिल्कुल खराब आटा है। महकमा फूड ने आटा बहरान पर काबू पाने के लिए फ्लोर मिलों को 100 किलो आटे के थैलों की रसद 3100 से बढ़ाकर 4100 कर दी है। ताहम कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत सस्ते आटे की सूरत में चोकर नमा आटा फरोख्त कर रही है। चंगा आटा मिलना चाहिए, ऐसा को महंगा भी बहुए, क्या करूं। ये भजन गवर्नमेंट का आटा है, किसी खाने का आटा नहीं है। प्राइवेट आटा बिल्कुल साफ है, जो सरकार गंदम दे रही है वो आटा नहीं है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज इकबाल सुप्रा का कहना था कि फ्लोर मिलों से निकलने वाले आटे के सैंपल लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं। अभी तक कोई भी सैंपल नाकिस सामने नहीं आया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, भावलपुर। महकमा एक्साइज मुल्तान टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल करने के लिए सरगर्म। एक्साइज डिपार्टमेंट की पहली शशमाही रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुख्तलिफ ब्रांच ने तकरीबन 3 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान की शानदार कारकर्दगी। महकमा एक्साइज ने माली साल 2025 से 26 के पहले 6 माह में 5 अरब टैक्स हदफ में से 3 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। मुल्तान में पंजाब भर में 60% रिकवरी के साथ सैर फहरिस्त रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्तान डिवीजन एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो पहली शशमाही है उसमें हमने शानदार कामयाबी हासिल की है रिकवरी में। हमारे डायरेक्टर जो मुल्तान डिवीजन के इफ्तिखार अहमद बल्ली साहब हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल में हमारे ईटीओ साहबान ने, इंस्पेक्टर्स ने, कांस्टेबल्स ने, क्लर्क्स ने अनथक मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट हमारा फिक्स था सालाना 5 अरब रुपए का, उसमें से हमने 31 दिसंबर 2025 तक यानी कि पहली शशमाही में 3 अरब रुपए के करीब वसूल कर लिया है, जो कि 60% बनता है एनुअल टारगेट का। मुल्तान एक्साइज को सबसे ज्यादा 74% टैक्स मोटर टैक्सेशन की मद में हासिल हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 50%, जबकि रोड चेकिंग के दौरान बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों से भी अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। मुल्तान सरे फरिश्त है 60% के साथ, उसके बाद बिहाड़ी है, खानेवाल है, लोधरा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें टैक्स वसूल हुआ है वो मोटर टैक्सेशन में हुआ है, वो इस वक्त 74% है हमारा। और प्रॉपर्टी टैक्स जो मुल्तान डिवीजन का वो 50% हमने उसका टारगेट अचीव कर लिया। तो इसी तरह जो हमारी रोड चेकिंग की टीमें हैं वो रोड पे उसमें सबसे ज़्यादा उनका रोल है। उन्होंने रोड पे जो अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं बगैर नंबर के और टोकन शार्ट हैं जिन गाड़ियों को, उनकी पड़ताल के दौरान अच्छी रिकवरी की है। टैक्स अदा करना एक कौमी फर्ज है जिसे शहरियों को बर वक्त सर अंजाम देना चाहिए ताकि तरक्की की रफ्तार को तेज किया जा सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पेशावर भिखारियों के खिलाफ पुलिस और पिंक स्क्वाड की मुश्तरका कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों भिखारियों को हिरासत में ले लिया गया। पिंक स्क्वाड का बुनियादी मकसद अवामी मकामात पर खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। तफसीलात के लिए अहमर खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के मसरूफ बाजारों, चौकों और सिग्नल्स पर भीख मांगने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन तेज कर दिया। इस कार्रवाई में मुल्तान पुलिस के साथ पिंक स्क्वाड भी मुतहर्रिक नजर आई। पिंक स्क्वाड दरअसल मुल्तान पुलिस का खवातीन पर मुश्तमिल खसूसी यूनिट है, जिसका बुनियादी मकसद अवामी मकामात पर खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। ताहम शहर में पेशावर भिखारियों की बढ़ती तादाद के बायस पिंक स्क्वाड को भी इन कार्रवाइयों में शामिल किया गया है। 10 स्कूटीज है हमारे पास। पूरे मुल्तान में ही हम पेट्रोलिंग करते हैं। पहले हम पेट्रोलिंग करते थे, फिर बाद में हमें टास्क दिया गया कि भिखारियों को आपने गिरफ्तार करना है। हम पूरे मुल्तान में ही जितने जहां भी हमें खबर मिलती है कि लोगों को ये तंग करते हैं, लोग बताते हैं कि फलां जगह, वहीं पे उसी इलाके में हम जाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। टारगेट जो भी हमें मिलता है
तकरीबन हम उस इलाके को बिल्कुल साफ सुथरा करके आते हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान भिखारियों को हिरासत में लेकर मुतलका थानों में मुंतकिल किया गया, जहां उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। खवातीन और कम उम्र भिखारियों को पुलिस हिरासत के बजाय बाज़ सूरतों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या बहाली मराकज के हवाले किया जाता है। हम जो पेशेवर भिखारी होते हैं उनको CPO साहब के हुक्म से इनको गिरफ्तार करते हैं और इनको थाने में जमा करवा देते हैं। थाने में इन पे जो पेशेवर होते हैं इन पे FIR दर्ज की जाती है और जो कभी कभार आते हैं उनको हम फलाही इदारों में जमा करवाते हैं। वहाँ पे इनको हुनर सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है, मुख्तलिफ काम सिखाए जाते हैं सबको। मुल्तान पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान 1200 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है। शहरी ताउन करें और पेशावर भीख मांगने वालों की निशानदाही करें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में एहतसाब का अमल अवाम के दरमियान नैब की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर नैब मुल्तान नसीम अहमद खान ने शहरियों की शिकायत सुनी। एडिशनल डायरेक्टर हुसैन अली सुखेरा और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद एहसान कादिर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा की खुली कचहरी में शिरकत, इंतजामिया का भरपूर ताउन रहा। तफसीलात आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में एहतसाब का अमल अवाम के दरमियान आ गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से शफाफियत और फौरी इंसाफ के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डायरेक्टर नैब मुल्तान नसीम अहमद खान ने खुद शहरियों की शिकायत सुनी और मौके पर ही मुतलका अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर नैब हुसैन अली सखेरा और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद एहसान कादिर भी मौजूद थे, जिन्होंने दरख्वास्तों की इब्तदाई जांच पड़ताल की। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जहीर अनवर जप्पा की शिरकत, जिला इंतजामिया के भरपूर ताउन की अक्कासी थी। खुली कचहरी के दौरान करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ अवाम ने बिला खौफ अपनी आवाजें बुलंद की और नैब को मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें जमा करवाई। खुली कचहरी में मजमूई तौर पे 66 दरख्वास्तें पेश की गई, जिनमें रेवेन्यू, पुलिस, हाउसिंग सोसाइटीज और सरमायाकारी से मुतालिक शिकायत शामिल थी। ज्यादातर तो जो है वो लोगों के जो अपने जो दूसरे मसाइल हैं, जमीनों के मसाइल हैं या कोई और ऑनलाइन फ्रॉड है, उसके हवाले से हमारे पास शिकायतें आई हैं। कुछ शिकायत हमारे पास जो हैं लासानी ग्रुप के हवाले से आई हैं, उनका ऑलरेडी केस जो है हमारे पास लाहौर में चल रहा है। उनकी एप्लीकेशंस को इंशाल्लाह हम लाहौर में रेफर कर देंगे। खुली कचहरी का मकसद अवाम और इदारों के दरमियान फासले कम करना और शफाफ एहतसाब के अमल को मुअस्सिर बनाना है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। खानेवाल के गुंजान आबाद इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश। RCA चौक कॉलोनी नंबर 3 के फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। शहरियों का कहना था कि जेर जमीन पानी खतरनाक हद तक मुजरे सेहत हो चुका है। मकामी इदारे न तो फिल्ट्रेशन प्लांट चलाते हैं और न ही बर वक्त फिल्टर तब्दील करते हैं। तफसीलात मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट में देखिए। खानेवाल में जिले इंतजामिया की नाअहली शहर के गुंजान आबाद इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। RCA चौक कॉलोनी नंबर 3 के फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं। शहरी कहते हैं कि पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। पहले बात यह है कि ये फिल्टर प्लांट देहाती इलाकों को बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ से कई इलाके के लोग पानी भरने के लिए आते हैं, हम भी आ रहे हैं। काफी दिनों से ये फिल्टर प्लांट बंद पड़ा, तकरीबन 1 से 2 माह हो गए हैं और ऊपर टैंकी पड़ी है, उसका ढक्कन भी नहीं है, कवे वगैरह इसके अंदर गिरते हैं और यहाँ पे सफाई भी नहीं है। हम आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मुजरे सेहत पानी पीने से मोहल्ले के अमराज का शिकार हो रहे हैं। जेर जमीन पानी खतरनाक हद तक मुजरे सेहत हो चुका है। दूसरी जानब मकामी इदारे न तो फिल्ट्रेशन प्लांट चलाते हैं और न बर वक्त फिल्टर तब्दील करते हैं। अफसरान फिल्ट्रेशन प्लांट के बंद होने की वजह बताने से भी गुरेज कर रहे हैं। बड़ा हम यहाँ से पानी भरने आते थे, अब हमें तंगी होती है, हम कभी उधर जाते हैं, कभी उस चौक में जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये फिल्टर चलाया जाए। हम घर का पानी पीते हैं और उससे बीमारियां फैलती हैं क्योंकि घर का पानी साफ नहीं होता, तो फिल्टर चलना चाहिए और करीब भी पड़ता। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में किताब बीनी के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। किला कोना कासिम बाग पर वाक़े कदीम म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की तामीर और मुरम्मत का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 1987 में तामीर लाइब्रेरी बरसों से खस्ताहाल थी। अब पहली बार इसकी बाकायदा तज़ीन व आराइश की जा रही है, जिससे इल्म व अदब से वाबस्ता हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तफसीलात सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में देखिए। 1987 में तामीर लाइब्रेरी बरसों से खस्ताहाल थी। अब पहली बार इसकी बाकायदा तज़ीन व आराइश की जा रही है, जिससे इल्म व अदब से वाबस्ता हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तफसीलात सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में देखिए।
मुल्तान इंतजामिया का इल्म व अदब को फ़रोग देने के लिए ऐसा इक़दाम तारीखी किला कोना कासिम बाग पर कदीम म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की तामीर और मुरम्मत का बाकायदा आगाज। लाइब्रेरी की पुरानी और कमजोर अंदरूनी साख को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया, जबकि इसी जगह जदीद तर्ज की नई बिल्डिंग तामीर की जा रही है। नई ज़ेर तामीर इमारत में मुताले के लिए कुशादा हॉल्स और किताबें महफूज रखने के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज मैं आया हूँ, मैंने देखा है ये हालात, लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये बेहतरीन बन जाएगी। यहाँ पर हर किस्म का बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम होता है। तमाम अखबारात यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलते हैं और किताबें जो भी हम चाहें वो हम ले सकते हैं। लाइब्रेरी की हालत पहले बहुत ख़राब थी, मैं अक्सर पढ़ने आता था। अब मैं आता हूँ, देख के दिल खुश हो जाते हैं। अब नहीं बन रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लाइब्रेरी में मौजूद सैकड़ों नायाब और कदीम किताबें दीमक लगने से ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि लाइब्रेरी का पुराना और टूटा फूटा फर्नीचर ताहाल बैरूनी अहाते में पड़ा हुआ है, जिसे जल्द हटाने और नए फर्नीचर से तब्दील करने का अंदिया भी दिया गया है। शहरियों का कहना है कि लाइब्रेरी की बहाली इल्म दोस्ती के फरोग की जानिब एक मुस्बत कदम है, जो नौजवान नस्ल को दोबारा किताब से जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। लाइब्रेरी काफ़ी अरसे से बंद रही है, अभी उसकी तज़ीन और आराइश का काम चल रहा है, तो हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है और बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की। काफ़ी अरसे से जो बंद थी लाइब्रेरी, तो हम पहले यहाँ आते थे लेकिन ये चीज़ें हमें मतलब कि देखने को नहीं मिलती थी, तो अभी तो माशाल्लाह से ये काफ़ी इनका हुकूमत का जो गवर्नमेंट पंजाब है मरीम को दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं। ताज़ीन और आराइश मुकम्मल होने के बाद लाइब्रेरी में 400 से ज़ायद नई किताबें शामिल की जाएंगी, जबकि क़ारीन के लिए जदीद और आरामदेह मुताले की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। कैमरामैन गयास अली के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में महकमा सेहत व बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तालीमी और ख़ानदानी मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें माँ और बच्चे की सेहत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मेले में ख़वातीन, फैमिलीज़ और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गौहर रहमान शेख की रिपोर्ट देखिए। शाबाश शाबाश शाबाश, दूसरा हाथ नहीं लगाना, दूसरा हाथ नहीं लगाना, शाबाश शाबाश। मुंह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मुल्तान के मज़ाफ़ाती इलाके बुदला सुन्नत में महकमा सेहत और बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तालीमी और ख़ानदानी मेले मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद अवाम में माँ और बच्चे की सेहत, ख़ानदानी मनसूबाबंदी और सेहत को मद्देनज़र ज़िंदगी के मुतालिक आगाही पैदा करना था। मेले में ख़वातीन, फैमिली, स्कूलों के बच्चों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ तालीमी आगाही और तफरीही सरगर्मियों का भरपूर सराहा गया। जो बेसिक मकसद है वो ये था कि यूथ हमारी जो है उसको हम आगाही दें कि ये आबादी जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। तो ये जो हेल्थ मेलाज हो रहे हैं ये सारे पंजाब में हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि इवन हर जो है ना तहसील में होंगे। और अभी आपने देखा कि ये जो बुदला जहाँ पे आज हो रहा है, ऐसे जो कस्बे हैं वहाँ भी होंगे। मेले में माँ और बच्चे की सेहत और खानदानी मनसूबाबंदी के मुतालिक आगाही स्टॉल्स लगाए गए, जबकि मेडिकल कैंप्स में शहरियों को मुफ्त तिब्बी मुआयना भी किया गया। बच्चों के लिए मैजिक शो, तकरीरी मुकाबले और दिलचस्प खेल मुनक्किद किए गए। एक हाथ से माल्टा छीलने के मुकाबले ने शुरा की तवज्जो हासिल की। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि मकामी गुलकारों ने सरायकी गीत गाकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। हमारे पहले भी इवेंट होते रहते हैं, लेकिन आज का हमारा इवेंट जो है वंडरफुल कामयाब रहा है। हमारे पास दूर दराज से मेहमान भी आए हैं, डीजी ऑफिस से भी मेहमान आए हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे एक डॉक्टर साहब हैं वो आए हुए हैं, बाकी डॉक्टर्स ने भी शिरकत की है। मुंतजमीन के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियों का मकसद अवाम में सेहत से मुतालिक शऊर पैदा करना और खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत को उजागर करना है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान।